Hello and good morning, everyone. I'm welcoming all of you on India's largest learning platform, Unacademy. And once you get the subscription of Unacademy, you are able to access unlimited designed courses by India's topmost educator. Apart from that, you can also attend daily live classes for the sake of your doubt clearance. And for judging your performance, whether you guys are on right track or not, you can also attend the live test and live quizzes. So just go to the Apple App Store or Google Play Store and download the Unacademy's learning app and start the process of your preparation. Here it is me, Achit Tiwari, and I'm taking continuous lecture on these four channels, which are NCERT 101, Current Affair 101, Maps 101, and Geography 101. So if you want to continue with me, so just do subscribe these four channels, right? So let's start the today's topic of discussion, which is the inequality virus report published by Oxfam, right? तो अभी क्या हुआ, हाल में ही रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम की जिसका नाम है द इनइक्वालिटी वायरस, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पेंडेमिक की वजह से हर एक कंट्री में, लगभग सारी ही कंट्री में जो इनइक्वालिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, विच मीन्स द गैप बिटवीन द हाईएस्ट रिच पॉपुलेशन और द हाई इनकम पॉपुलेशन एंड द लोवेस्ट इनकम पॉपुलेशन, ठीक। और ये प्रोसेस किसी एक देश में या किसी एक सेक्टर के लोगों के साथ नहीं बल्कि यूनिवर्सली देखी गई है, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक जो जो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट मैन हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टॉप 10 बिलियनियर्स हैं, उनकी जो कंबाइंड वेल्थ है उसमें लगभग 540 बिलियन यूएस डॉलर की ग्रोथ हुई है, ठीक है। आपको पता है कि इस टाइम में मिलियंस ऑफ लोगों की जॉब चली गई, उनके पास कोई ऐसा चीज नहीं थी जिससे वो कॉन्टिन्यूएशन में अपनी इसेंशियल नीड को पूरा कर सकते, चाहे वो शेल्टर की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी का कंसर्न हो। बट वहीं दूसरी तरफ व्हाट वी आर सीइंग कि जो टॉप 10 बिलियनियर्स हैं उनकी जो कंबाइंड वेल्थ है उसमें कॉन्टिन्यूएशन में ग्रोथ हो रही है, ठीक। So it is an eye-opening situation for ourselves and for our policymaker and government also, that how we are going to deal with the situation of pandemic in upcoming time period, right? Again, as we all know that women are the vulnerable section of our society, and our policymaker and government said work hard for the decades to bring them into the active process of economy, right? In each and every country, most of the governments are continuously working so that these women get the part, so these women get the job, and they were being the part of active economy in each and every nation. But what happened during this process of pandemic, then this section was the section who was hardest hit by pandemic, right? इतने साल लगे, इतने डिकेड्स लगे, जिसकी वजह से ये जो विमेन हैं इनको हमारी एक्टिव इकोनॉमी का पार्ट बनाया जाए, इनको लेबर फोर्स का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन पेंडेमिक के टाइम पर इन्हीं को सबसे पहले वर्क प्लेस से निकाला गया, सबसे पहले इन्होंने ही जॉब लूज करी, ठीक। तो हुआ ये कि इतने साल की जो मेहनत थी वो एकदम से क्या हुई, खराब हो गई, करेक्ट। Again, if we talk about India specifically, then what we are seeing here कि इंडिया में भी जिस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर जो कंबाइंड वेल्थ थी टॉप 10 लोगों की वो लगभग 500 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ी, सो सेम थिंग हैपेंड इन इंडिया आल्सो, राइट। तो ये रिपोर्ट क्या बता रही है, ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया के भी जो रिचेस्ट बिलियनियर हैं उनकी कंबाइंड ग्रोथ में 35% की इंक्रीमेंट हुई है। वहीं दूसरी तरफ यू गाइज आर दी अवेयर अबाउट द फैक्टर दैट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ pandemic. Most of the migrant workers, millions of the migrants workers who were not having any support from government, they were facing the food crisis, they were facing the social support system, so that is why they migrated from one place to another place. This was the situation of mass exodus for India. But on the other hand, this report is saying that the richest billionaire of India has experienced growth in their combined wealth up to 35%. तो आप इजीली यहाँ पर जज कर सकते हैं, आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पेंडेमिक की वजह से हमारी कंट्री में और पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है, जो आपका रिचेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है और जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके बीच का जो गैप बढ़ता चला जा रहा है, राइट।
तो इट इज अ काइंड ऑफ आई ओपनिंग सिचुएशन फॉर आवर गवर्नमेंट कि आने वाले टाइम में हम अपनी पॉलिसीज को किस तरीके से डिजाइन करें कि दोबारा से हम अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को रीस्टोर कर सकें, नॉर्मलाइज कर सकें। करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम बात करें कि भाई इंडिया स्पेसिफिक में हमने एक चीज बात करी कि यहाँ पर जो 35% ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है ना। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये लॉकडाउन पीरियड की बात कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लॉकडाउन पीरियड, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू रीड आउट हियर दैट द 90% सिंस 2009, 422 बिलियन रैंकिंग इंडिया 6th इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस। ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप बात करिए तो जो हमारे यहाँ पर ये जो टॉप 10 बिलियनियर्स हैं जिनकी इनकम ग्रोथ हुई है, अगर आप वर्ल्ड वाइड इनका कंपैरिजन देखिए तो हमारे जो बिलियनियर्स हैं वो 6th नंबर पर आ रहे हैं। ठीक है। यानी रशिया में भी सेम केस देखा गया, चाइना में भी सेम केस देखा गया, जर्मनी फ्रांस में भी सेम केस देखा गया कि इस पेंडेमिक के टाइम पर इन सभी कंट्रीज के जो बिल्कुल क्रीम सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो अपने पास पूरी की पूरी वेल्थ को एक्यूमुलेट कर ले रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको क्रश होना पड़ा, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपनी जॉब लूज करनी पड़ी, उन्हें फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस झेलना पड़ा, एक तरफ से दूसरी तरफ उन्हें माइग्रेट होना पड़ा ताकि एटलीस्ट वो सरवाइव कर सकें। So you can easily examine here the severity of inequality not only in India but also in the rest of the world, right? And the severity says that there is the most majority of our country is working, is continuously trying to survive during the process of pandemic, but on the other hand the richer section of the society is facing or experiencing continuous growth in their economic wealth, right? Now, if you talk about the sectoral disintegrations, if you talk about the sectoral weaknesses during the time of pandemic, then what we are seeing here, ठीक कि इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स है दैट आर इंडल्ज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है। जो इनफॉर्मल सेक्टर है सबसे ज्यादा लोग वहां पर काम करते हैं। ठीक। और ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये लगभग लगभग 75% ऑफ लोगों को पकड़ रहा है और सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट सेक्शन भी यही माना गया है। ठीक। और ऐसा देखा गया कि यहां पर लगभग 122 मिलियन लोगों ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पेंडेमिक अपनी जॉब को लूज किया है। ठीक है। अगेन जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं वहां पर जो अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत कम होती है अपने ग्रोथ करने की। यहां पर ऑलरेडी लोग सर्वाइवल बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर उनके पास जॉब सिक्योरिटी भी चली गई इस पेंडेमिक के टाइम पर, सो डेफिनेटली they are having severe problem that how they are going to manage their family, right? Now it is the duty of our government, because under this section of DPSP ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल वेलफेयर की। हम मिक्स्ड मॉडल इकोनॉमी अगर फॉलो कर रहे हैं तो सोशल एम्पावरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को इसी डायरेक्शन में आगे अपनी पॉलिसीज में चेंज लाना है। ठीक। अगेन अगर हम इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ते हुए कुछ और चीजों पर अपना गौर करें तो देखेंगे कि भाई इंडिया में डेफिनेटली वो इंडिविजुअल ह्यूमन जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया गया है आने वाले टाइम पर उसकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ज्यादा बेहतर है। डेफिनेटली सीधा सा फैक्टर है, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो कल को वो आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि आप उसको बेटर हेल्थ प्रोवाइड कराइए, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कराइए। बट हुआ यूं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक कि जो आपकी एजुकेशन है वो ऑफलाइन मीडियम से ऑनलाइन मीडियम की तरफ शिफ्ट हो गई, एज यू गाइज आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, बिकॉज वी आर कनेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन मीडियम इटसेल्फ, राइट। तो इंडिया में जरूरी नहीं है कि हर लोगों की रीच हो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक। ठीक। इसकी वजह से एक तरफ तो इकोनॉमिकल गैप क्रिएट हुआ इंडियन पॉपुलेशन के बीच में, दूसरी तरफ जो नया गैप दिखाई दे रहा है दैट इज द गैप ऑफ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये हो गया वो पॉपुलेशन जिसके पास एक्सेस है इंटरनेट सर्विसेज की, वहीं दूसरी पॉपुलेशन जिसके पास इंटरनेट सर्विसेज की एक्सेस नहीं है। तो ऐसे टाइम पर वो लोग जिनके पास इंटरनेट की कॉन्टिन्यूअस एक्सेस है वो क्या कर पाएंगे,
अपनी एजुकेशन को वो कॉन्टिन्यूएशन में आगे बढ़ा पाएंगे। डेफिनेटली आने वाले टाइम में उनको फायदा होगा। बट वहीं जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, क्या होगा, उनके एजुकेशन का लॉस होगा, जिसकी वजह से ये जो इनइक्वलिटी का फैक्टर है ये और ज्यादा खराब होने वाला है। ठीक। इसके अलावा ये तो बात हुई आपके एजुकेशनल फैक्टर की, एजुकेशनल सेक्टर की। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द हेल्थ सेक्टर, तो हेल्थ वाले सेक्टर में हम क्या देख रहे हैं कि हेल्थ वाले सेक्टर में अगर हम डिसीज की बात करें, ठीक है, और अगर हम कोरोना वायरस से जो लोग इफेक्ट हुए हैं, जिनको कोरोना वायरस ने इंपैक्ट किया है, अगर हम उनकी बात करें तो उनकी भी मेजॉरिटी जो रिपोर्ट बता रही है वो पुअर कम्युनिटीज में ज्यादा रही है। ठीक। इसका भी रीजन क्या है, क्योंकि जो पुअर कम्युनिटी है, ठीक, ऑब्वियसली उनके पास सैनिटेशन की सुविधा नहीं है, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो क्लीन वाटर ड्रिंक कर सकें। ठीक। उनके पास क्लीनर शेल्टर नहीं है। ठीक। तो ऐसे में उनके हिट होने की चांसेस क्या हुई, ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई। ठीक। उनके पास टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं है। ठीक। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जब ये कोरोना वायरस से हिट हुए तो ऑब्वियसली इनके ऊपर एक एक्सेसिव इकोनॉमिक लोड भी आया। ऑलरेडी दे आर सफरिंग फॉर देयर बेसिक food requirement, but on the other hand this medical pressure is also worsening the process of inequality in the marginalized section of Indian society। ठीक है। तो एक तरफ तो आपके पास ऑलरेडी सुविधाएं नहीं थी, ऊपर से इन कमियों की वजह से अगर आप कोरोना वायरस की वजह से इंपैक्ट हुए, उस वायरस ने आपको हिट किया, तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस और खराब हो गई। तो एक तरफ जो हमारा रिचेस्ट सेक्शन है, जिसके पास हर चीजों की एक्सेस है, वो तो सुपर सेफ हो गया, ऑब्वियसली उसकी जो वेल्थ है वो भी इंक्रीज होती रही। लेकिन दूसरी तरफ जो पुअरर सेक्शन है, एक तरफ उसने जॉब लूज करी, दूसरी तरफ अपने ह्यूमन रिसोर्स को सपोर्ट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी एजुकेशन की और हेल्थ की, वो फैसिलिटी भी इनके हाथ से क्या हो गई, मिसिंग हो गई। ठीक। तो अगेन ये एक मेजर चैलेंज होगा आने वाले टाइम में हमारे पॉलिसीज मेकर के सामने कि किस तरीके से हम इस इनइक्वलिटी की प्रोसेस को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, किस तरीके से कम करते हैं। Again, such kind of international reports are very much important for the sake of your examination, right? And you can also use all these pointers which we are discussing right now as a fodder point in your mains examination and your essay as well, right? तो यहां पर ये जो आपकी ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ये क्या कहती है, ये बताती है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं उनके सामने एक अर्जेंट नीड है, उन्हें एक काम बहुत जल्दी से करना है कि ये जो हमारे देश के या पूरे वर्ल्ड वाइड जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग जिन्होंने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पेंडेमिक, उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जाएं, उनके ऊपर कुछ टैक्स इंप्लीमेंट किया जाए, कुछ उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे जो फंड गवर्नमेंट के खाते में आए, जो फंड गवर्नमेंट को मिले, उससे हम अपनी सोशल एम्पावरमेंट की पॉलिसीज को फंड कर सकें, सोशल सिक्योरिटी के लिए जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको रन कर सकें, और ये जो इनइक्वलिटी का इशू है इसको थोड़ा सा कम कर सकें। ठीक है ना। So this is the urgent need in front of policy maker of not only the India but also at a world level, correct? So if we talk about the another aspect, अगर हम थोड़ा सा और इस रिपोर्ट में अंदर जाकर के देखें, just a second, I'm very much sorry, लेट मी चेंज द स्लाइड। ओके, अगर हम इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और जाकर के जज करें तो यहाँ पर क्या हम हम देख रहे हैं कि इन जगहों पर जो अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड के जो टॉप 10 बिलियनियर हैं, ठीक है, इन्होंने पेंडेमिक के टाइम पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पेंडेमिक इतना वेल्थ क्रिएट किया है जितना इन्होंने पिछले डिकेड्स में भी नहीं किया होगा। मतलब एकदम से इनकी वेल्थ में एक्सपोनेंशियल राइज हुई है। ठीक है। इसका रीजन क्या है, रीजन यही है कि ऑब्वियसली जिस टाइम पर बाकी सेक्शन के जो सोसाइटी थे उनकी जॉब लूज हो रही थी, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही थी, वही इनके पास इनके फेवर में सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज शिफ्ट हो गई, तो एकदम से इनकी वेल्थ क्या हो गई, राइज हो गई। ठीक। दूसरी तरफ
अगर हम अदर फैसिलिटीज की बात करें, ठीक है ना, तो जो पॉवर्टी की वजह से जो हमारा पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको क्या फेस करना पड़ा, उसे फेस करना पड़ा कि भाई उनके पास मेडिकल फैसिलिटी उतने बेहतर बेटर तरीके से नहीं पहुंच सकी। ठीक, इन्होंने एक एनालिसिस रखी इस रिपोर्ट के माध्यम से, दैट इफ यू टॉक अबाउट अमेरिका, स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट यूएसए, और यूएसए को हम क्या कंसीडर करते हैं कि भैया डेवलप्ड नेशन है, बट वहां पर भी इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी बहुत तेजी से बढ़ी। तो वहां पर यह देखा गया कि लगभग 22,000 जो आपके लेटिनोस थे या ब्लैक पीपल थे, ठीक है, उनकी लाइफ बचाई जा सकती थी, उनकी लाइफ को सेव किया जा सकता था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पेंडेमिक, अगर उनके पास, ठीक, सेम फैसिलिटी होती जैसी कि वाइट लोगों के पास है। यानी अगर उनकी जो मॉर्टेलिटी रेट है, अगर उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो वाइट पीपल जैसी ही होती, तो ये जो 22,000 लेटिनोज या 22,000 ब्लैक पीपल की डेथ हुई है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते थे, रोक सकते थे। तो यहां पर भी क्या दिख रहा है कि जो रेसिज्म का फैक्टर है वो भी निकल करके आया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक, राइट। एंड इन लास्ट, इफ वी टॉक अबाउट द विमेन ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक, तो इन्होंने भी अपनी जॉब को सबसे पहले हिट किया, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर कि ये सबसे ज्यादा हिट सेक्शन था, क्योंकि ऑलरेडी इतने साल लगे थे इनको एक्टिव इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कराने में, और एकदम से जब पेंडेमिक का टाइम शुरू हुआ तो इन्होंने सबसे पहले अपनी जॉब को क्या कर दिया, लूज कर दिया। ठीक है, so these were the aspect of current phenomena or during the course of pandemic, and this is an eye-opening report for our policy maker, that how they are going to deal in upcoming time and how they are going to curb this economical gap in each and every section of our society। ठीक, चाहे वो आपका इकोनॉमिकल गैप हो, चाहे रेसिज्म का गैप हो, चाहे वो आपके एजुकेशनल और हेल्थ सेक्टर के बीच में गैप हो, चाहे डिजिटल डिवाइड हो, इन सारी चीजों को आगे कैसे मैनेज करना है, दिस इज द मेजर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ आवर गवर्नमेंट। एंड व्हाट दिस रिपोर्ट सजेस्ट कि करंट में फंड मैनेज करने के लिए जो हाईएस्ट इनकम ग्रुप है हमारी कंट्री का और ऑल ओवर वर्ल्ड का, उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोजिशन किया जाना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट के खाते में सोशल एम्पावरमेंट की प्रोसेस को मैनेज करने के लिए फंड को एक्यूमुलेट किया जा सके, राइट। So this was all about the inequality virus report published by Oxfam. I guess you enjoyed the lecture, and if you want to continue so with such kind of lecture, then just do subscribe on Academy's platform and enjoy the lectures designed by topmost educator of India. And specifically, there are around 15,000 courses specifically for a civil services examination. And Unacademy provides you three kind of subscription program, which is the Plus subscription, Iconic subscription, and subscription for optional subject. So once you take the Plus subscription, you are able to get the unlimited structured courses. You can also able to attend the live classes, and you can also able to take the live quizzes, right? So this is the free structure of your Plus subscription. But once you apply this code ATS Live, you are able to get 10% discount instantly, and your fee will be reduced up to this much level. Apart from that, during the process of your preparation, each and everyone faces some sort of problem, like whether the guys are following the right track of preparation or not. So for that sake, Unacademy has started another Iconic subscription program where you will meet your personal coach, and this coach will guide you through with your study plans, with your personal feedback. And apart from this thing, you can also access the prior 4 things or Plus program also, or the Plus subscription also. So this is the fee structure of Iconic program. But again, once you take this ATS Live code, you can easily get the 10% discount, and your fee will be reduced up to this much level. And then last, if I talk about the optional subject subscription program, then Unacademy provides you various kind of time frame for the preparation of your optional subject. You can take the subscription from 1 month up to 36 months, right? This is the fee structure of your optional subscription. And again, if you take the referral code, which is the ATS Live, you are able to get 10% discount here also. And Unacademy is also providing you the facility of no cost EMI, which means you can also
submit your fee in the various installment, right? So just do not waste your time. Take the subscription of Unacademy and start the process of your preparation, right? So thank you all for watching this lecture. I hope you enjoyed. I hope you got the point which is important for the sake of your upcoming UPSC examination. And here it is a link of my Telegram channel, which is Achit Tiwari 101. You can join me there. You can raise your concerns so that I can improve myself. And again, don't forget this code 8 years live for the sake of your 10% discount during taking the subscription. And please do like, share, and subscribe Unacademy's platform. Apart from that, if you want to continue with my lectures, then please do subscribe these 4 channels, which are the NCERT 101, Current Affair 101, Maps 101, and Geography 101. And I'm taking continuous lecture on these 4 channels, right? So thank you all of you again for joining me here. I hope you enjoyed. Bye-bye.